there are few things. Like all of you, if you are interested in studying, like instrument part has been left over. So if you are interested, Dr. Vineet Kumar is there for you. So just let me know. There are two things that we would like to give you. That one thing is that instrument part that has not been covered, and one more thing that the school patient that has been presented in the morning. So I would like to give a brief review of that thing, because I'm not going to take all those things, just how to examine a school patient. I would like to impart few important points so that you can see, because in the morning what I saw, there was no discussion on the examination, there was just discussion on the theoretical part. So if you are interested, this is one clause, because the time is getting over, because right now it's a 5 p.m. and we are supposed to leave by 5, but still if you are interested, then we can take this part. Just let me know. So few slides for instrument, I think. Okay. Okay. Come and please. Instrument part. मेरे पास है, मैं भेजूँ? Instrument वाला जो part है ना, this is more of a formality in exams. Okay, see. See what happens is, by the time you have passed, completed with your पढ़ने का मन खत्म भी हो गया होगा, and this is what happens in actual exam when you have done completed with your long case, short case ना, तब तक माहौल एकदम बदल जाता है. By the time you go in your separate room जहाँ पर instruments, implants, prosthetics, osteology ये सब रखा रहता है ना, तो by that time your result is almost decided. So what happens is, pass fail हो गया, उसके बाद score कौन अच्छा करेगा, for that these tables are primarily, to my understanding. क्यों भाई है ना? तो what I will be telling you is not these instruments, but few basic concepts which might help you in your near future period for practice. तो उसमें खाली यही से पूछा जाता है, how to identify, how to categorize, methods to use, related surgical procedures. ये MBBS में भी यही सब पूछा जाता है, PG में भी यही सब पूछा जाता है. PG में फर्क क्या होता है कि जब वाइवा आपका स्टार्ट होता है ना किसी इंस्ट्रूमेंट पे, तो there is no end to it, कहीं पर भी जा सकता है, कैसे भी. कुछ एक फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ लोग हैं, we'll be discussing only those questions on only those particular implants, nothing beyond that. सबको मालूम है क्या है? क्या है? जब भी बोलना है एग्जामिनर के सामने, use no abbreviations. हमेशा पूरा बोलना है. क्या है? Dynamic hips too. सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या प्रिंसिपल क्या है? What is the principle? The faster you respond, the sooner you will wind up. Compression. Anyone else? Anything else better than this? It is not compression, it is controlled collapse, but it is controlled collapse at the fracture site. Right? दो तरह के बैरल्स होते देखा होगा ना, शॉर्ट और लॉन्ग. कब क्या यूज होता है? हाँ? गुड. क्यों? क्यों? What? Minimum amount of collapse which is required Is? 20 So? So that collapse is required for achieving the fracture. Okay, then? And if it is less, then there is a chances of toggling of the latch screw. And if it is more, then there is a chance of cutout. No. Jamming. अब बताओ क्यों? सर फ्रैक्चर जितना नजदीक रहता है तो शॉर्ट बोल लीजिए सर. ये किसी ने बताया था? बाय. थ्रेड लेंथ कितनी है? 22. बैरल की लेंथ कितनी है लॉन्ग में? 38. कितना हुआ मिला के? कितना हुआ? 60. You need another 25 at least for collapse, and that's the reason why. तो शॉर्ट कहाँ यूज करेंगे? शॉर्ट कहाँ यूज करेंगे? जहां पर नेक लेंथ कम हो, जहां पर वाल्गस ऑस्टियोटमी कर रहे हो, इस तरह की चीज तभी करोगे. ठीक है?
ईडीओ कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? पूछा जाता है, यहाँ पर भी लड़के गलती करते हैं। प्योर एपी प्योर लैटरल व्यू में सब कॉर्नल बोन से टिप ऑफ स्क्रू तक का डिस्टेंस, ठीक, इट शुड बी लेस देन 25. If it is more than that, then what happens? क्या होता है, कैसा कट थ्रू होता है? इम्प्लांट फेल कर जाता है, इतना बता दोगे तब भी पास हो जाओगे। ये क्या है? स्क्रूज है ना? लॉकिंग स्क्रू, कैंसलर्स, वर्टिकल। इसके बारे में सबको मालूम है? What is the concept of lax screw? किसी को आइडिया है क्या है? What is lax screw? बाकी सब लिखा है। Lax screw is basically a concept. It's not a screw. Any screw can be used as a lax screw, right? ये चीज क्लियर है? अच्छा, मानो कोई बोन है 4.5 mm का स्क्रू तुम्हें एज ए लैग यूज करना है, कैसे करोगे? There are certain prerequisites, preferably perpendicular to the fracture side, और ये 4.5 mm का fully threaded cortical screw है and they have used it as lag screw. कैसे करा? Steps बताओ। Proximal cortex क्या होता है? Try to use the right terminology at the right place. मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हो, गलती माना जाएगा, ठीक है? कुछ एक खुर्रा टाइप के एग्जामिनर होते हैं, अलग तरीके से बोलेंगे, ये क्या बोल रहे हो? और आपका सारा कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा and you will be committing more mistakes later on. So try to get hold of the right terminology. क्या है? One minute. आप बताइए, खड़े हो गए भाई। What is bigger and what is smaller, I don't know. There is a 4.5 mm cortical screw and you want to use it as a lag screw. आप बताएं। कौन सा होल ग्लाइडिंग होल रहेगा इसमें? एयर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये वाला होल आपने, ठीक है, फिर व्हाट? नो, नॉट अ ड्रिल बिट। पहले अंदर क्या डालते हैं? ड्रिल बिट सीधा डाल देते हैं, ड्रिल गाइड। फिर कौन सा? 3 पॉइंट। चलो ठीक है, सब थ्योरेटिकल बातें हो गई। कुल मिला के जो नियर कॉर्टेक्स है उसमें काउंटर सिंक का क्या एडवांटेज? क्यों करते हैं? दिस ऑल द क्वेश्चंस पॉप अप। क्यों करते हैं? नहीं करते हैं हम। नहीं देखा अपने इंस्टीट्यूट में करते हुए? काउंटर सिंक है हमारे इंस्टीट्यूट में है? क्यों नहीं करते हो? मैं एग्जामिनर हूं तो मुझसे इस तरह से नहीं बात कर सकते ना। ओके, करते हो? नहीं करते हो? क्यों नहीं करने का और करने का क्या फर्क है, ये मालूम है? एनीबॉडी? काउंटर सिंक क्यों यूज करते हैं? क्यों करना चाहिए? हेड को फ्लश करने के लिए। नो, एनीबॉडी एल्स? हेड को फ्लश करने के लिए। नहीं, नहीं करते फ्लश। अंदर इतना मसाले है, ब्लड फ्लश करते हो क्या हेड के? उसमें बोन के अंदर अगर उसी सरफेस पे प्लेट डालनी है तो डिक्रीज दी स्ट्रेस राइजर ऑफ इट। ज्यादा टाइम करोगे बिना काउंटर सिंक के फट जाएगा, ठीक है? और काउंटर सिंक भी कितना करना रहता है कॉर्टिकल थिकनेस का? चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्निक काउंटर सिंक न्यूट्रलाइजेशन प्लेट। अच्छा ये बताओ, ये फ्रैक्चर है, तुमने लैग स्क्रू डाला, प्लास्टर लगा के छोड़ना प्रेफरेबल है या न्यूट्रलाइजेशन प्लेट? क्यों? खाली लैग स्क्रू लगा देते, छोड़ देते, जुड़ेंगे नहीं क्या? प्लास्टर लगा दिया ना। सर जो शेयरिंग फोर्स एक्ट करेगी वो फेल कर Only जाएगा। question is always and always arises is why. सर शेयरिंग फोर्स जो एक्ट करेगी उससे वो फेल हो जाएगा, ग्लाइड करके नीचे आ जाएगा। See, the area of compression which is achieved by this screw is very less. So it is always imperative to always and always apply the neutralization plate in order to make it in order to achieve better stability. You can always apply in a plaster cast, no harm, but yes, the rates of failure are more in that. Huh? I'm not getting it. What would you? क्या बोलना चाह रहे हो? अरे बोलो। चलो क्या है?
सब छोड़ो, heard about this? ये क्या है? ये वाला प्लेट ये क्या है? लिखा है ऊपर डायनेमिक कॉम्प्रेशन प्लेट. What is dynamic in this? And previously what was dynamic in that DHS? What is dynamic in this? जो सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, प्लेट लग गई, लगा दी प्लेट, फ्रैक्चर स्टेबलाइज कर दिया. Now what is dynamic in it? Once you fix up a plate, once you fix up the fracture with this plate, is there anything dynamic like that? कुछ रहता है dynamic? नहीं. DHS में रहता है? रहता है. इसमें नहीं रहता ना? तो सही लिखा है, गलत लिखा है? इंट्रा ऑफ कंप्रेशन देता है. So it's an intraoperative modularity which you get for compressing, for achieving compression at the fracture site. कैसे होता है? क्या खास बात होती है इसकी? एक तरफ होल स्ट्रेट रहता है और एक तरफ ऐसा करके स्लांट रहता है, जिसमें कॉर्टिकल हेड का बेस जो है ग्लाइड करता है. तो अगर तुम बीच में होल मारोगे तो कैसा रहेगा? न्यूट्रल मोड में ये फिक्स होगा और साइड में करोगे तो इट विल क्रिएट कंप्रेशन. ऐसे ही ना कहते हैं 0.5 mm का, 0.5 ना क्या 1 कितना mm का कंप्रेशन अचीव होता है? आपने टाइट किया, यहाँ पर आपने न्यूट्रल स्क्रू डाला या लोड स्क्रू डाला, टाइट किया, आपने कंप्रेशन अचीव किया. ऐसा होता है कभी? क्यों हुआ? रीजन अगेन व्हाई डिड इट हैपन? ज्यादा कंप्रेशन क्रिएट किया, नियर कॉर्टेक्स पास में आ गया और इसने फार कॉर्टेक्स को अपार्ट कर दिया. इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करोगे? प्रीवेंट. प्रीवेंट से होगा क्या? फर्क क्या पड़ेगा प्रीवेंट से? कर दिया, सही आ गया, क्या फर्क क्या पड़ा? पहले कांटेक्ट में जब प्रीवेंट करते हैं प्लेट तो क्या आता है? फार कॉर्टेक्स आता है. अच्छा एक और बात बताओ, ये जो नीचे डायग्राम बना है सही बना है गलत है? ये गलत. इसने प्रीवेंट करके प्लेट लगाई है और कंप्रेशन अचीव किया है, पहला फार कॉर्टेक्स को अटैक किया है, बाद में नियर कॉर्टेक्स. कितना सही है? ये जैसा इसने स्क्रू डाला है सही है? अरे नहीं तो क्यों नहीं? दोनों ऐसे डाल दे तो हम ज्यादा कंप्रेशन अचीव कर लेंगे. कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? आंसर हैज टू बी यस और नो ना. दैट इज वन वे ऑफ अचीविंग कंप्रेशन, दिस इज अदर वे. ऐसे कर सकते हैं. अच्छा मानो कि तुमने दोनों स्क्रूज डाल दिए, तब भी हल्का सा गैप रह गया, तब क्या करोगे? थर्ड स्क्रू से कंप्रेशन अचीव कर सकते हो? कर कैसे? और एसेंट्रिक लगेगा. कैसे? एक और अरे सब सर्जन बनने जा रहे हो ना, कैसे करेंगे? फटाफट बताओ यार. एक और एसेंट्रिक लगाएंगे. एक और एक्सटेंडेड डालने पड़े, दोनों पड़े हुए हैं ऑलरेडी. अब इस साइड में एक और. तो उसको एक्सटेंडेड डालने से इसको ये पड़े हैं तो कैसे अचीव करोगे? इसको लॉकिंग स्क्रू लगते हैं ना तो सब भूल गए. अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट स्क्रू जो इधर वाला स्क्रू है, तुमने उसको क्या किया? ये वाला लूज किया, इसको एक्सेंट्रिक डाला, जब इससे कंप्रेशन अचीव किया तो फिर इसको टाइट किया. तो दिस इज द वे इन व्हिच यू कैन गेट फर्दर कंप्रेशन वंस यू हैव नॉट अचीव दिस कंप्रेशन बाय टू नियर स्क्रूज. तो पास में डाल दो साइड के. ठीक है, ये फ्रैक्चर कॉन्फिगरेशन बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता होगा. पर हम ना ऑब्लिक फ्रैक्चर, शॉर्ट ऑब्लिक, लॉन्ग ऑब्लिक. तो एक न्यूट्रल स्क्रू डालना है, एक लोड स्क्रू डालना है. लोड मतलब एक्सेंट्रिक. तो कौन से स्क्रू डालते हैं पहले और क्यों? अगर नहीं डालोगे तब क्या होगा? बताओ फटाफट बताओ. सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, है ना? बस यही सब सवाल पूछे जाएंगे. किस साइड में, यहाँ या यहाँ? किससे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट है. तो इधर वाला न्यूट्रल डालोगे, ये लोड डालोगे. क्यों क्यों क्यों? हम उल्टा करते हैं तभी मजा आता है. अच्छा ओवर राइडिंग. सो दैट्स द आइडिया. ऐसे में क्यों नहीं होगा ओवर राइडिंग? ऐसे में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ऐसे भी तो हो सकता है. प्लेट लगी है ना ओवर राइडिंग प्रिवेंट करने के लिए. नहीं, जब ये फ्रैगमेंट इधर जाएगा तो ओवर राइडिंग क्या प्रिवेंट करेगी? प्लेट. और जब ये फ्रैगमेंट इधर जाएगा, देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट दिस ओवर राइडिंग. दिस माइट हैपन. सो
जो ये बता रहे थे वो सही बता रहे थे, इनको शेयर चलो खैर लेट्स गो अहेड। और तरह के प्लेटों के बात हो सकती है, तो उसके लिए जवाब देना है कि लॉकिंग कॉम्प्रेशन प्लेट क्या होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। वेयर टू यूज दिस इंडिकेशंस ऑफ एलसीपी, दिस हैज टू बी क्लियर टू यू। 4-5 इंडिकेशंस होते हैं, आई विल नॉट बी डिटेलिंग दोस थिंग्स। फायदा क्या होगा, ये एंगल स्टेबलाइज कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। वर्टिकल स्क्रूज में यू हैव द लिबर्टी टू चेंज डायरेक्शन एंड फिक्स इट, ये एंगल स्टेबल कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। आजकल कुछ नया आ गया है इसमें। नहीं लॉकिंग स्क्रू में ये चीज पॉसिबल हो गई है, वेरिएबल इंडिकेशंस इंट्राआर्टिकुलर कम्युनिकेट वेरी प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर्स एंड फ्रैंको डीसी में। और जहाँ डुअल प्लेटिंग करते हो, इधर उधर के स्क्रूज टकराने लगते हैं ना, तो यू कैन चेंज दैट डायरेक्शन ना। अच्छा, do you have any idea about this? अच्छा ये बताओ, ये वुड बेयरिंग इम्प्लांट है या शेयरिंग इम्प्लांट है? Do you have any idea about this? वुड बेयरिंग जो हो गया, केमिकल फॉर्मेशन सॉल्यूशन से भी हो गए, और देश में हो गया, कल तो मालूम होगा ना लोगों को। ये क्या है? चलिए हाँ लोड शेयरिंग, ये क्या है? ये इंटरलॉकिंग है ना, किस तरह का इम्प्लांट है? जो डीसीपी था वो ये लोड बेयरिंग डीसीपी लगाते हैं। एक एक्स्ट्रा मेटलरी इम्प्लांट है, एक इंट्रामेटलरी इम्प्लांट है। व्हाट इज दिस? इंट्रामेटलरी। ये किस तरह का डिवाइस है? अगर हम फ्रैक्चर में लगाते हैं तो इट्स अ लोड शेयरिंग डिवाइस और लोड बेयरिंग डिवाइस। लोड शेयर, एंड व्हाट इज शेयरिंग दिस लोड? नेल के साथ क्या शेयर कर रहा है? बोन्स नो? Is it always like that? This intermediary nail is a load sharing device. No. How does it vary? Like, I mean, is a DCP a load sharing device or a load bearing device? Load हो यार, गलत सही। Bearing. Why? So there is a spectrum. There is a spectrum. ये तो ये क्या है? लोड शेयरिंग, ये क्या हुआ? डिस्ट्रैक्शन में छोड़ दोगे फ्रैक्चर फीमर, तो लोड शेयरिंग चेंजेस इनटू लोड बेयरिंग। डीसीपी में भी सिमिलर, गुड लैग स्क्रू, गुड कॉम्प्रेशन, इट्स अ लोड शेयरिंग नॉट अ बेयरिंग। पीछे से दिखाया था ना कम्युनिकेटर फ्रैक्चर्स में, वो जो ऐसा कोलैप्स कर गया था, तो इन दैट कॉन्फ़िगरेशन becomes a load bearing device. गैप छोड़ दिया, it becomes a load bearing device. So that's the concept which goes like in load bearing and sharing. ठीक है, और क्या? ओके, एक ही केस ये होगा था, तो लेट्स गिव देम अ कांसेप्ट अबाउट पॉलर स्क्रू। नहीं, इससे क्या करोगे? क्या है क्या? Classify this fracture as Forget about classification, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बता पाएंगे। है क्या ये? ऐसे ही? फ्रैक्चर वो ले गए यार। जब ऐसा एग्जामिनर सवाल जब इस तरह से पूछा करे ना, सब माइक लीजिए। Try to think on more normal things rather, क्या आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? रिकॉर्डिंग हो रही। अच्छा, try to think about more normal things rather than कि अगर हमने कुछ emphasize करके पूछ लिया तुम सोचने लगोगे कुछ मैंने कुछ अलग सा पूछ लिया। It doesn't happen like that. Okay, so this is a simple fracture, both one leg, right and left जो भी दिखा रहेगा। करोगे क्या? Skin condition, everything is normal. Patient is hemodynamically stable. क्या करोगे? क्या करोगे? Nail. तुम nail करोगे। Don't ever speak in exam कि सर nail भी कर सकते हैं, सर plate भी कर सकते हैं, laser भी लगा सकते हैं। No. Speak up what you are going to do in this case. Knowing everything about this soft tissue condition, the patient hemodynamics and everything. Okay. You have to have that information priorly and then you can plan. फिर वो एग्जामिनर पूछता है और क्या कर सकते हो, then you can come up with other ideas कि हाँ ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। What you'd like to do is, आप क्या करोगे? Nail. कौन सा ऑप्शन चूज किया आपने इनमें से? Relative stability. ये क्या है? Absolute stability. क्या कुछ स्लाइड्स मिस हो गई हैं? हाँ,
The surgeon did this. He also planned in for a relative stability, but he landed up in this. ठीक है, प्लास्टर लगा दे इसके ऊपर, चलेगा. पोस्ट ऑप में देखा, लगा कि यार मरीज से कौन बात करेगा, प्लास्टर लगा के निकलते हैं. इज इट ओके? रिवाइज करोगे तो फिर यही हो जाएगा. हाँ, प्रॉब्लम क्या है इसकी? प्रॉब्लम क्या है? रिडक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है ना. उसने स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया 3-4 स्क्रू डाल रखे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है. रिडक्शन अप्रोप्रिएट है. अब रिडक्शन अप्रोप्रिएट लाना पड़ेगा ना. तो रिवाइज करोगे तो कैसे करोगे? और कोई तरीका? पोलर स्क्रू डालो कहेंगे तो डाल लोगे. कैसे डालोगे बताओ तो, बताओ. नहीं, दिस इज द थिंग आई वांट टू कन्वे. कैसे डालोगे? देखो एग्जाम में अगर नहीं मालूम हो, देखो एवरीबडी डजंट रिमेंबर्स पोलर स्क्रू. नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे सर? खोल करके पकड़ करके करेंगे. ओपन रिडक्शन इसी वे नो करा जा सकता है. कॉम्प्लिकेशंस है अपने, बट कैन बी डन. यस और नो. ओपन रिडक्शन एंड देन नेलिंग और प्लेटिंग, व्हाटएवर यू फील लाइक. और क्या कर सकते हैं? पोलर स्क्रूज इज वन वे इन व्हिच यू कैन अलाइन योर नेल्स सेंट्रली. बट कैसे डालेंगे वो पोलर स्क्रू? कहां डालेंगे वो कैसे डिसाइड करते हैं? See, there is a basic rule for putting in this polar screw, right? Although it's not 100% rule, but yes, it is a basic rule. इसने भी डाले, देखो कहाँ डाला, इतने सारे. एक यहाँ डाला और ये वाले इसने जो है शायद फ्रैक्चर हो गया होगा, पर फिर भी नेल को गाइड करने के लिए डाला. So the basic rule goes like, he has also used this reduction clamp to achieve this reduction. I don't know why, but this is another way. Direct reduction, holding with the percutaneously with a Weber's clamp, and then you can nail it. You can use in a polar screw. You can use assist your reduction with a plate. मतलब यूनिकॉर्टिकल प्लेट लगा दीजिए लॉकिंग स्क्रूज के साथ, फिर रेल करिए. And this is how the things went right. Polar screw लगाया, और इतने सारे स्क्रू कैसे लगाएं ये समझना जरूरी है ना. रिडक्शन अचीव कर लिया, everything went well, the fracture united. And this is how it has to be done. AP व्यू में जहां पर भी फ्रैक्चर है, आप along the fracturing axis ड्रॉ करिए. एक along the बोन के एक्सिस में और एक फ्रैक्चर के along. जहां पर भी एक्यूट एंगल बन रहा है वहां पर पोलर स्क्रू डाल देते हैं. ठीक, प्रॉक्सिमल का फ्रैक्चर है, वाल्गस में जाने का टेंडेंसी है, एक लाइन ऐसा खींचो, एक लाइन ऐसा खींचो, एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पोलर स्क्रू डाल देना है. लेटरल में भी ऐसे ही करना है. एक एक्सिस का लाइन खींचो, फ्रैक्चर लाइन पे खींचो, जहां एक्यूट एंगल बन रहा है वहां डाल देना. पर फ्रैक्चर साइट के पास में डालना है, बहुत ऊपर नहीं डालना है. यहाँ नहीं डालने का, इससे काम बनेगा. यहाँ डालना है. स्क्रू नहीं डाल पाते हो, केवायर डाल दो मोटा. ठीक, बाद में हटा दो. देयर आर सो मेनी वेज बाय कैन बी डन. बट पोलर स्क्रू कहाँ डालना है? दिस इज द ग्राउंड रूल. ग्राउंड रूल ये है. ठीक है, तो ऐसा करोगे तो सही रहेगा. प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर में और क्या दिक्कत होती है? ठीक है, हमें फ्लेक्शन में चला जाता है ना, नहीं एक्सटेंशन में. एक्सटेंशन फ्रैगमेंट चला जाता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं? पोलर स्क्रू डाल देते हैं ना. है हमारे पास ये प्रिंसिपल तुमने बताई दिया तुम्हें. ये इस तरह से, ये तो रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया. और क्या कर सकते हैं? पोलर स्क्रू डाल के उसने रिडक्शन ले लिया है. और क्या कर सकते हैं? देखो ये फ्रैक्चर पैटर्न है, तो उसने पोलर स्क्रू कहाँ डाला? एक्यूट एंगल कहाँ बन रहा है? ये देखो ये, तो यहाँ पर स्क्रू डाला पोस्टीरियरली, और ये भी यहाँ से चली गई. और क्या यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन में रखने के लिए? ओपन रिडक्शन. अगेन थिंक अबाउट मोर सिंपल थिंग्स. और क्या कर सकते हैं? प्लेट असिस्टेड रिडक्शन. और क्या? इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड रिडक्शन, जैसा ये क्लैंप से पकड़ लिया. और क्या? एक्सटेंशन में रखने के लिए, सॉरी फ्लेक्शन में रखने के लिए सुप्रापेटलर नेलिंग. इसके बारे में मालूम होना चाहिए ना. सुप्रापेटलर नेलिंग इज अनदर थिंग. चलो ये सब तो छोड़ो यार, इसको क्या बताएंगे. ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये फिर क्या है ना कहीं? व्हाट इज दिस कॉम्प्लिकेशन नोन एज? Z. अब तो हेलिकल ब्लेड यूज होता है, तो होता नहीं. होता क्यों है मालूम है? खत्म हो गया भाई. क्यों होता है? हाँ, नहीं ये होता क्यों है? पेशेंट ना चले, लिटा के रखो, होगा कभी नहीं होगा. क्यों होता है?
वेट बेयर करने में क्या होता है, सी द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट यहाँ क्या अटैच होता है, एब्डक्टस होते हैं, तो एवरी टाइम यू वॉक देयर इज अ varus thrust on the proximal fragment which tends to push this screw inside and this screw here. So if not put in the right way, this happens. The right way क्या होता है, तुम्हारा जो ऊपर वाला derotation screw होता है, नीचे वाला main screw होता है ना, जिससे तुम compression लेते हो, stabilizing screw होता है ना, यहाँ ये सब condylar bone तक डालते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके खींचते हैं, इसी के इस लाइन से ऊपर नहीं आना चाहिए screw, टिप ऑफ द नेल के लेवल पे होना चाहिए स्क्रू, ये टिप ऑफ द नेल पे आती है और ये टिप ऑफ द नेल के ऊपर नहीं आना चाहिए, इट्स नॉट द स्क्रू, इट शुड नॉट क्रॉस द टिप ऑफ द नेल, द डीरोटेशन स्क्रू, ठीक है, बस। अच्छा एक और सवाल बड़ा बढ़िया पूछा था, ये क्या है? नहीं यार, खाली बोन निबलर नहीं, अच्छे से बताओ, MSc कैंडिडेट हो, डबल एक्शन है ना, डबल एक्शन बोन निबलर, डबल एक्शन है ना,